السلام علیکم، جی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل اور میں ہوں رانی سیف اللہ خان۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ نیوٹرلز کہا تھا کہ ماحول سازگار ہے، روس کا دورہ کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کر دے گا۔ سوشل میڈیا پر اپنے انٹرویو میں عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ روس کا ایک موقف اور مغرب کا دوسرا موقف ہے۔ میں نیوٹرل سمیت اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے روس گیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اہم خبر سے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ نیوٹرلز نے کہا تھا ماحول سازگار ہے، روس کا دورہ کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کر دے گا۔ سوشل میڈیا پر اپنے انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ روس کا ایک موقف ہے اور مغرب کا دوسرا موقف ہے۔ میں نیوٹرل سمیت اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے ہی روس گیا تھا۔ روس کی ہمیں ضرورت تھی کیونکہ تیل، گیس اور سستا گندم خریدنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس سے ہم نے ملٹری ہارڈ ویئر بھی خریدنا تھا کیونکہ ہمیں ضرورت تھی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دور میں نیوٹرلز کو سمجھایا، بڑی مشکل سے معیشت سنبھالی ہے۔ نیوٹرلز کو کہا سازش کو ناکام نہیں بنایا تو سب کچھ بکھر جائے گا اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف آج ملک گیر احتجاج کرے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بیک وقت ملک کے تمام بڑے شہروں میں احتجاج کیا جائے گا۔ کراچی میں شاہراہ قائدین، لاہور میں لبرٹی چوک، اسلام آباد میں F9 پارک اور راولپنڈی کی کمرشل مارکیٹ میں احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں گھنٹہ گھر، پشاور میں ہشت نگری، سکھر اور کوئٹہ میں مقامی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع ملتان میں چوک شاہ عباس، لودھرا میں کاظمی چوک، لیا میں یادگار چوک اور چوک اعظم اور بہاڑی میں گوال چوک پر احتجاج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مظفر گڑھ میں شہر سلطان، بہاول نگر میں بلدیہ روڈ، خانیوال میں انصاف مرکز، جبکہ کبیر والا اور ڈی جی خان میں ٹریفک چوک پر احتجاج ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ انوکھے لاڈلے کی 4 سالہ پالیسیز کے باعث آج مہنگائی ہے، جبکہ لاڈلے کو لانے والی ہماری کب سنتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تب ہی سنتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اپنی سیاست کمزور کر کے پاکستان بچانے کی کوشش کی۔ یہ کہنا کہ پنجاب اور گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی سفید جھوٹ ہے۔ اب پنجاب میں بیٹھوں گا اور سب سے مل کر کام کروں گا۔ حکومت کرنے کا موقع ملا تو پاکستان کو 110 ڈگری بدل دوں گا۔ آصف علی زرداری نے اشراف اور 12 کو پیپلز پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں بیٹھنا اور کارکنوں کو عزت دینی ہے۔ کارکنوں کو بحریہ ٹاؤن آنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے گلبرگ شفٹ ہو رہا ہوں۔ کون کہتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا؟ آئندہ انتخابات میں ہم واضح اکثریت کے ساتھ وفاق اور دیگر صوبوں میں حکومت بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو FATF کی گرے لسٹ سے شرائط مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل ہیڈ کوارٹر میں کور سیل کے قیام کے آرمی چیف کے فیصلے کو خوب سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کور سیل میں شامل سول ملٹری قیادت میں ٹیم کو شاباشی دیتا ہوں۔ پاکستان کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے ہر فرد پر قوم کو فخر ہے۔ پنجاب حکومت نے بھی بازار رات 9 بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیر سے صوبے کے بڑے شہروں کے بازار مارکیٹیں صبح 8 بجے سے رات 9 بجے تک کھلیں گی۔ حمزہ شہباز نے تاجر رہنماؤں، حکومتی تجاویز اور دیگر حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد فیصلہ کر لیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور سمیت بڑے شہروں میں عمل درآمد شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ آفس لاہور سمیت بڑے شہروں میں پیر سے رات 9 بجے بازار بند ہو جائیں گے۔ فارمیسی، بیکری، پیٹرول پمپس کو استثناء حاصل ہوگا۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں DX بلڈرز نے استحکام پاکستان کانفرنس کی۔ کانفرنس میں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ اور CEO DX سیف اللہ نے بھی شرکت کی۔ استحکام پاکستان کانفرنس میں نوجوان نسل کو اپنی صلاحیتوں سے قوم کے لیے خدمات سر انجام دینے پر روشنی ڈالی گئی۔ نوجوان صحت، تعلیم اور معیشت میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت اہم ہے کہ ہم ہر چیز سے زیادہ پاکستان کو اہمیت دیں۔ نوجوان نسل ہی پاکستان کا مستقبل ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کو سمجھیں۔ بہت اہم ہے ہم سب کے لیے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا استحکام، کیوں کہ ملک ہے
तो हम सब हैं। इन्होंने अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी और खिदमत को सराहा और इनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश की। कॉन्फ्रेंस में नौजवान नस्ल की 10 शख्सियात को कौम के लिए इनकी खिदमत पर एजाज़ात से भी नवाजा गया। मेंबर कौमी असम्बली और मारूफ टीवी होस्ट मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की खबर कुशाई होगी। कराची की मुकामी अदालत ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत मुतनाज़ हो गई। वजह मौत जानने के लिए कराची की मुकामी अदालत ने लाश के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि आमिर लियाकत एक सियासतदान थे। उनकी अचानक मौत पर शक है कि उन्हें जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया गया, इसीलिए उनका पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि उनकी मौत की वजह सामने आ सके। अदालत ने शहरी अब्दुल अहद की दायर दरख्वास्त मंजूर करते हुए आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी। सरकारी वकील का कहना था कि वर्षा आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। वर्षा कहते हैं कि पोस्टमार्टम से उनके वालिद की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। वर्षा कहते हैं कि हमें किसी पर शक भी नहीं। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि पसे पर्दा हकायक सामने आने चाहिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश के बैरूनी मुआयने से मौत की असल वजह पता नहीं चलती। मौत की वजह पता न चलना सवाल पैदा करता है कि मौत तबई हुई है या नहीं। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम की तारीख का तयन करेगा। और अब आपको बताएं कि खूबसूरत भारी भरकम जानवरों ने कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की दिलकशी बढ़ा दी। हजारों लोग रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानी के जानवर खरीदने आ रहे हैं। उनमें से कुछ के सौदे बन रहे हैं तो कुछ मजीद जानवरों के मुंतज़िर हैं। मंडी में जानवरों की तादाद 95,000 तक पहुंच गई। 133 किलो वजनी बकरा 3,48,000 में फरोख्त हो गया। कराची के व्यापारियों का कहना है कि गुलाबी नस्ल का बकरा मैंने कोयटा से 1600 रुपए का खरीदा था, जिसे 32 माह पाला है। चंद रोज कबल ही फरोख की गर्ज से मंडी लाया, जिसका गुज़िश्ता रोज सौदा हो गया। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालत ने दुआ के बयान और मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले में खामी है, लिहाजा इसे मुअत्तल किया जाए। दुआ ज़हरा केस में नया मोड़ आ गया। दुआ के वालिद मेहदी काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा के बयान और मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर फैसला सुना दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल बताई गई है, जबकि नादरा रिकॉर्ड और तालीमी इसनाद के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में खामी है। दरख्वास्त पर फौरी समाअत की जाए। मेहदी काज़मी ने अपने वकील जिब्रान नासिर एडवोकेट के हमरा कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम भी लगाया और कहा कि अदालत जो मुनासिब समझेगी करेगी। पुलिस ने जो है वो मेरे साथ अब तो खैर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। एज पर सर उन्होंने बताया भी कि रिपोर्ट तक उन्होंने हमें नहीं दी। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कहा कि कानून के मुताबिक 16 साल से कम उम्र लड़की अगर घर से जाती है तो ये वरगलाने या अगवा के ज़मरे में आता है। ये वाज़े नहीं कि दुआ पंजाब कैसे गई। मरकजी मुल्जिम ज़हीर से अभी तक तफ्तीश नहीं हुई। 16 साल से कम उम्र हो किसी बच्ची की, वहाँ पे जब वो घर से जाती है और उसका जो मेंटल स्टेट है वो इममटीरियल होता है। अदालत 16 साल से कम बच्ची का मेंटल स्टेट या उसकी रजामंदी फॉर द पर्पसेस ऑफ अबडक्शन एंड किडनैपिंग नहीं देखती। 8 जून को सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए दुआ को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दी थी। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी को ताहाल नहीं निकाला जा सका, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशगोई भी कर रखी है। मज़ीद तफसीलात वहीद गुजर की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में अब्रे रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में नमाया कमी, मौसम खुशगवार, मगर इंतजामी नाअहली के बायस शहर की मेन शाहराहों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका और बारिश इंजॉय करने का प्लान बनाए शहरियों के सारे प्लान धरे रह गए। बच्चे भी इंतजामिया से शिकवा करते दिखाई दिए। मैं मदरसे जा रहा हूँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी खड़ा है तो इसको साफ़ किया जाए, मेरे कपड़े नापाक हो जाते हैं। कल भी मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ मदरसे से वापस, तो यहाँ पे कोई इंतजामिया फ़िक्र ही नहीं करती यहाँ की। शाहजमाल के इलाके में बारिश का पानी ताहाल जमा है, जिसके बायस दफातर आने वाले अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। सर यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो, जब भी बारिश होती है बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो कल से हम बहुत परेशान हो रहे हैं।
पानी यहाँ से निकलता ही नहीं है सर। इसका कोई हल निकाला जाए। वासा इंतजामिया को जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए शहर भर से निकासी आब के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने होंगे ताकि शहरी खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो सकें। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। अब आपको बताएं कि सुबह सिंध के शहर जैकबाबाद ने दुनिया के गर्म तरीन शहरों में अपनी जगह बना रखी है। शहर में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ने से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली बख्श। एशिया का गर्म तरीन शहर जिला जैकबाबाद, जहां पर इस वक्त भी 50 सेंटीग्रेड से गर्मी तजावज़ करने लगी, तो दूसरी जानिब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस बिजली पर चलने वाले कारोबार पर मनफी असरात मुरतब होने लगे, के बाद मजदूर दिहाड़ीदार तबका परेशान दिखाई देने लगा। लाइट का इतनी लोड शेडिंग है, जितना 1 घंटा चलती है तो 4-4 घंटे बंद, 2 घंटे चलती है 3 घंटे बंद। कारोबार कैसे चले? हर बंदा परेशान हो चुका है। परेशानी तब ख़त्म होगी जब ये लाइट चलेगी। एक बिजली के यूनिट ज़्यादा, कीमत बढ़ती जा रही है, काम है नहीं, गरीब बंदा किधर जाए। शहरियों का कहना है कि 80% बिल पेमेंट होने के बावजूद भी 16 से 18 घंटों की तवील लोड शेडिंग समझ से बाहर है। लोड शेडिंग से बहुत तंग हम आया और बिल जो पहले से अभी डबल आ रहे। जो बिल होता था पहला 1800-1600, अभी 4-4.5 और 5,000 रुपए बिल आ रहे। वफाकी हुकूमत बिजली के बिलों में तो इजाफा कर रही है, लेकिन लोड शेडिंग पर कोई तवज्जो नहीं, जिसके बाद शहरी परेशान दिखाई देने लगे। कैमरामैन हुसैन के साथ अली बख्श, GTV न्यूज़, जैकबाबाद। रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान के मकीन अरसा दराज से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इलाके की खवातीन पानी की किल्लत के बायस नमाज पढ़ने से भी रह जाती हैं। बारहा इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद हुक्काम टस से मस नहीं हो रहे। मज़ीद बता रही है हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहां। जी आफ्ताब, क्यों पानी का मसला हल नहीं हो रहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के इलाके डोकला खान में, जहाँ के जो बसने वाले हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ के इलाका मकीन सख्त गर्मी और तपती धूप में दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। तकरीबन 4 साल से यहाँ के इलाका मकीन जो है वो हुकूमती दावों और इंतज़ामिया के मुंतज़िर हैं कि किसी तरह कोई हुकाम जो है वो यहाँ पर आए, इनकी सुनवाई की जाए और यहाँ के इलाका मकीनों को जो है पानी मुहैया किया जाए। यहाँ के इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि कई दफ़ा बारहा इन लोगों ने PM पोर्टल पर भी अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराई है, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमत है या इंतज़ामिया है वो टच से मस नहीं हुई है। मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे। सर बताइएगा, आप लोगों ने शिकायत दर्ज की है, इंतज़ामिया की जानिब से कोई यहाँ पे आया हो, इस हवाले से कोई इक़दामात इन लोगों ने उठाया हो? इस महल्ले में मलिक वसीम साहब हैं, उनके घर में तकरीबन हमारा पूरा महल्ला इधर का तकरीबन 10 से 12-15 मरतबा जा चुके हैं। ना कोई लाइनें की खुदाई की है, वो भी बंद की है, पैप पड़े हुए हैं सारे। रात को 3 बजे मोटर चलती है तो उस टाइम दूसरी लाइनें खोल देती हैं। पता ये चला कि लाइनमैन भी पैसे खाते हैं, इधर वो मिले हुए हैं, जो उन लोगों को दबाते हैं उनका पानी खोल देते हैं। जो इस महल्ले में तो कोई नहीं खोलता। हमारे महल्ले की माएँ बहनें पानी भर भर के कमर टूट गई उनकी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि इनका यही कहना है कि जो शिकायत इन लोगों ने दर्ज की है, बारहा इंतज़ामिया के पास गए हैं, तो इंतज़ामिया ने जो इंतज़ामिया हरकत में आई है उसका नतीजा ये निकला है कि यहाँ की जो गलियाँ हैं वो लाइनें डालने के लिए उनमें खुदाई की गई है, लेकिन वो भी उसी तरह से जो है यहाँ पर छोड़कर वो चलते हुए नज़र आए हैं। इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर पानी का मसला जो है वो संगीन से संगीन होता जा रहा है और इंतज़ामिया जो है वो ख़ौबे खरगोश के जो है वो मज़े लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी, कराची के इलाके बफर जोन में पुलिस ने मुबैना मुकाबले में जख्मी होने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुजाहिमत पर एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। एमूरिया बफर जोन सेक्टर 16 KBR कब्रिस्तान के करीब पुलिस ने 2 मुबैना डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फ़ोन्स और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। मुलजिमान की शनाख्त सुमेर और अनवर असलम के नामों से हुई। दूसरी जानिब बल्दियाती इत्तेहाद टाउन गुलशन गाजी के करीब घर के करीब मोबाइल फ़ोन छीने गए। दौरान मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फैक्ट्री मुलाजिम रजतुल्ला जाँ बहक हो गया, जबकि मकतूल के हमरा मौजूद पड़ोसी समीउल्लाह भी जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक जाया वक़ुआ से 30 बोर पिस्तौल की गोली का खौल मिला है। पंजाब भर में लड़कियों से ज़्यादती के वाक़यात बढ़ गए हैं। फैसलाबाद की तहसील डिचकोट में मुलजिम ने ज़्यादती मुज़ाहमत के दौरान लड़की को आग लगा दी। लड़की को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां अस्पताल के ज़राए के मुताबिक उसकी हालत तशवीशनाक है और 70% जिस्म जल गया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अजीज भट्ट की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब में ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात। फैसलाबाद की तहसील डचकोट और इसका इलाका है मजहबी वाला। ज्यादती की कोशिश में लड़की को मुलजिम ने आग लगा दी। शोर सुनकर आसपास के अफराद पहुंच गए, मुलजिम को धर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम हमसाये में रहता था। दूसरी जानिब पुलिस और रेस्क्यू जराये मौके पर पहुंच गए। लड़की को शदीद जख्मी हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक लड़की की हालत तशवीशनाक है। उसके जिस्म का 70% हिस्सा जल चुका है। मौके पर पहुंचने वाले इलाका मकीनों का कहना था कि मुलजिम ने ही ज्यादती की कोशिश की थी। मुंडा आया, उन्हें इज्जत नूं पियावा, इज्जत नूं पै के मुड़ के बगैरा अग लाती। अग ला के दौड़ गया। काशिफ दा नाम है, उन्हें अग लाई है, बगैरा कह रहा मैं बुझाउण डिया नाल ला के। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती बारात लेकर पेशावर पहुंच गए। जमशेद दस्ती ने मोहम्मद कबीले में शादी की। साबिक रुकन कौमी असम्बली का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि किसी सियासी घराने में शादी नहीं की, मेरी तरह के आम लोग हैं। महंगाई बढ़ गई है, वलीमे में मेहमानों को दाल खिलाऊंगा। ये कोई खास एजेंडा नहीं है, ना मेरा कोई सियासी एजेंडा है, ना कोई सियासी घर से मेरा रिश्ता हुआ है। मेरी तरह मेरे तबके के गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, और ये अल्लाह ताला ने सुबह बना दिया। और ये मैं कहूँ कि कबैली भी जो है ना, यकीनन वो मेरी तरह पसमानद है। जैसे मेरा सरे की खिता पसमानद है, जुल्म और जबर का शिकार है, वैसे हमारे कबैली भाई भी एक लंबे अरसे से लाशें उठा रहे हैं, उनके घर तबाह हैं। मैं खुद भी अपना वलीमा नहीं कर रहा, वल्लाह फुर्सत नहीं है, और मैंने सितंबर में मैंने कहा कि दाल खिलाऊंगा, वो भी दोस्तों के तावन से। अल्लाह शायद। मुनीर में खौफनाक चमगादड़ें फलों के बागबानों के लिए दर्द सर बन गई हैं। जिसम चमगादड़ों की वजह से आड़ू, अमलोक, नाशपाती, खुबानी और दीगर फसलें बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। वज़नी चमगादड़ें दरख्तों पर उल्टा लटक कर इलाके में खौफ व हरास फैला रही हैं। सलीम खान बुनेरी की रिपोर्ट देखिए। मुनीर में गैर मामूली बड़ी चमगादड़ों ने लाखों रुपए मालियत के फलों के बागात तबाह कर दिए। चमगादड़ें 4 से 5 फीट लंबी हैं। फलों के बागात तबाह होने से काश्तकार परेशान हो गए। हालिया बारिशों की वजह से परिंदों को अपना मस्कन छोड़ना पड़ा है। बारिशों के बायस बुनेर में चमगादड़ों ने अमलोक, केले, आड़ू, सेब, चीकू और नाशपाती के दरख्तों पर बसेरा कर लिया। दरख्तों की शाखों पर उल्टी लटकती चमगादड़ों को भगाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। बागात के जितने भी मालिकान थे, उनका जो जितना भी कारोबार था, उनके साथ काफ़ी लोग मुंसलिक थे, तो रफ्ता रफ्ता वो मईशत भी तबाह हो रहा है। अगर हुक्काम ने बर वक्त इसकी खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मेरे ख्याल से ये पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लेगा। हज़ारों की तादाद में बागात और दरख्तों पर बसेरा किए हुए चमगादड़ों को ख़त्म करने के लिए इंतजामिया की जानिब से इक़दाम न होने के बराबर हैं। कैमरा टीम के साथ सलीम खान बुनेरी, GTV बुनेर। इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्क़त पर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग करके ही मुआशरे की बेहतरी और इंसानी हुकूक़ के लिए काम किया जा सकता है। सहाफ़ी अगर इस हवाले से कानूनी मामलात और ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हों तो बेहतरीन तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के ज़रिए मुतासरा लोगों की दाद रसी की जा सकती है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन और बॉन्ड लेबर के हवाले से बेहतर रिपोर्टिंग के लिए 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का हैदराबाद के मुकामी होटल में आगाज़ हुआ। पहले रोज़ SSDO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौसर अब्बास, डायरेक्टर प्रोग्राम शाहिद जतोई ने शुरा को लेक्चर्स दिए। कंसल्टेंट वकार हैदर अवान ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होने वाली इंसानी स्मगलिंग और पाकिस्तान में ट्रैफिकिंग इन पर्सन समेत बॉन्डेड लेबर के हवाले से अदाद शुमार और वाक़यात से आगाही देते हुए इसकी रोकथाम के तरीक़ाकार से आगाह किया। शुरा ने सवाल जवाब के सेशन में आगाही के साथ साथ अपने मुशाहिदात भी शेयर किए। और माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। दिन भर मेहनत मजदूरी करके रात को बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने वाले बाप को दुनिया भर में आज फादर डे मनाया जा रहा है। मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज फादर डे मनाया जा रहा है। GTV से बात करते प्रोफेसर मुश्ताक वारसी ने बताया
کہ باپ کی اہمیت بہت بلند درجہ رکھتی ہے. زمانہ قدیم میں والد کو عزت دی جاتی تھی، مگر اس مشکل دور میں بہت سے دل دہلا دینے والے واقعات دیکھنے اور اخبارات میں سامنے آتے ہیں. بچوں کو میسج دوں گا کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، کیونکہ کل آپ بھی ایک باپ ہوں گے. بارش ہو رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، آندھی چل رہی ہے، اور ایک باپ بچوں کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے یا آ رہا ہے. فادر ڈے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ان بھولے ہوئوں کو سیدھے راستے پہ لے آئیں اور ان کو یہ یاد دلائیں کہ ماں باپ بھی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے. بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا والدین کا فرض ہے. پروفیسر مشتاق وارسی کے 7 سالہ صاحبزادے نے میڈیا کو ایسا بیان دیا کہ سننے والے حیران رہ گئے. میں فادر ڈے پہ اپنے دوستوں کو یہی پیغام دوں گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. وہ نہیں ہوں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے. فادر ڈے کے عالمی دن پر بچوں میں پیار کا اظہار نظر آتا ہے، مگر مکاتب فکر رکھنے والے حضرات کا کہنا ہے اپنے باپ کی خدمت کرو تو ہر مشکل آسان ہوگی. کیمرہ مین ساجد سعید کے ساتھ وقار شوکت، جی ٹی وی، لاہور. سندھ کے کھلاڑیوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آ گئی ہے. سندھ حکومت نے 4 سال بعد رواں سال دسمبر میں سندھ گیمز کرانے کا اعلان کر دیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز اصغر عظیم سے. جی اصغر، اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیے، سندھ میں ہر سال سندھ گیمز ہوا کرتے تھے، لیکن طویل عرصے کے بعد 2018 میں ہوئے اور پھر اس کے بعد تقریباً 4 سے 5 سال ہونے کو آیا. اب تک یہ سندھ گیمز نہیں ہو سکے، لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید اس سال جو ہے سندھ گیمز کا انعقاد ہو جائے. ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ سندھ حکومت کے سیکرٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر جو اختر عنایت بھرگڑی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے. کیا ہمارے نوجوانوں کو اس سال سندھ گیمز میں اپنے پرفارمنس کا موقع ملے گا سر؟ انشاءاللہ. جیسے آپ نے کہا 2018 میں نے پہلے یہاں آپ کو بتایا تھا، کیونکہ کچھ کورٹ میٹر بھی تھے اور کچھ ایک ایسوسیشن 2 ایسوسیشن کے درمیان ٹگ آف وار بھی تھی. اب ہم کیس جیت چکے ہیں. انشاءاللہ اب کچھ ایسا کیلنڈر بنا دیں گے کہ ہر سال یہ گیمز ہونی چاہیے. سندھ کے بچوں کے لیے، سندھ کے کھلاڑیوں کے لیے، ایتھلیٹس کے لیے بڑی خبر ہے کہ اس سال دسمبر میں جو ہے سندھ گیمز کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور یقینی طور پر جو ہے ایک خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیلنڈر ایئر بننا چاہیے. تو یقیناً ہر جگہ ہر ایک گیم کا کیلنڈر ایئر ہوتا ہے، تو سندھ گیمز کا بھی کیلنڈر ایئر ہونا چاہیے. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز، جی پاکستان کے لیے.